Hello everyone, I am Dr. Udar. Welcomes you to the new lesson. Last time we had studied about the Euclidean algorithm and we had seen one example and given homework, two questions. Let us solve one question of this type itself, which is written on the screen. This is from the exercise. So let us solve a similar type of question from there as well. So I write it down here. So this is the C part of that question itself. I had given you A and B. So now this is the C part. So let us solve it out and we will see other questions as well. So we have to find GCD of this and express it in this form, that is AX plus BY form. So first and foremost thing is I have to find the GCD of it. So I apply the Euclidean algorithm. So I take this is equal to 119 plus some remainder. So 119 goes 2 times. 238, 38 means 32, 34, 34. So I shift 119 on this side, 34 here, 34 3s are 90, 102, 17. So I shift 34 on this side and 17 here, 2 ja, it becomes 0. So that means we got GCD of 119 and 272 as 17. Now I have to represent this as in the form of AX plus BY. Okay. So I take 17 from here, 17 equal to 119 minus 3 times 34, and I take 34 from here, so it is 272 minus 2 times 119. So I put those values here. 17 equal to, I am getting 119 minus 3.34. I take the value of 34 from above, so it is 272 minus 2119. Let us simplify it. So what we are getting is we are having minus 3272 as it is, and 119 it is 326 plus 7 plus 7 119. So which is equal to what we say. So 119 we are taking along with it as x. So I can write it this way. So it is 119.7 plus 272 dot minus 3. So this is our x, this is our y. So let us take another question. So this is our next question. So this is our next question, that prove that the greatest common divisor of two positive integers divides the LCM. So suppose we take the two numbers as A and B such that they possess the GCD, the conditions for which the GCD exists. So these A and B satisfies those conditions, and let D denotes the GCD of A and B, and M ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे भी M ले लेते हैं, and M denotes
LCM of A and B. So what I have to show is that D divides M. So हम क्या लेंगे, D जो है वो GCD है, तो क्या हो गया जी, D डिवाइड्स A, D डिवाइड्स B एज वेल, उसकी ज़रूरत है नहीं हमें, तो हम एक ही से इसको प्रूव कर देते हैं. implies A is equal to some dx एंड जो है एल एम जो है वो LCM है, तो दैट मीन्स इट इज मल्टीपल ऑफ A. सो आई कैन राइट इट एज M इज इक्वल टू A इंटू वाई. अब जो A की वैल्यू है यहाँ से, ये मान लिया 1 है, इक्वेशन नंबर 1, ये जो है 2 है. तो इक्वेशन नंबर 1 से जो है हम वैल्यू डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या आ गया जी, ये m इज इक्वल टू ए वाई, ए की वैल्यू हमने यहाँ से डाल दी डी एक्स वाई, सो विच इज़ नथिंग एल्स बट डी ऑफ एक्स वाई. तो यहाँ से क्या इन्फर हो गया, दैट मीन्स डी जो है वो m को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो है d डिवाइड्स m. तो GCD always divides the LCM. Let us come to the next question. So our next question is this one. अरे चलो, ये थोड़ा नाराज हो रहा है कि इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो हम इतना ही सही काम चला लेते हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन है, एज्यूमिंग दैट GCD ऑफ A एंड B इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट GCD ऑफ A प्लस B, A माइनस B इज आइदर 1 और 2. So now let us focus on this question. तो मान लिया जो है GCD इसका जो हमें फाइंड करना है, A प्लस B और A माइनस B का GCD जो है वो मैं मान लिया कि जो है ये D है. तो जब D इसका GCD है तो इम्प्लाइज क्या होगा, D डिवाइड्स A प्लस B एंड D डिवाइड्स A माइनस B. डिविजिबिलिटी में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले कि अगर ऐसा होता है D 2 को डिवाइड करता है, या कोई भी A 2 को डिवाइड करता है B और C को, तो A जो है BX प्लस CY को भी डिवाइड करेगा फॉर एनी XY. ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी वाले लेसन में हमने पढ़ा था, जो पहले मैं पोस्ट कर चुका हूँ. तो D जो है वो डिवाइड करेगा A प्लस B प्लस A माइनस B को, तो B से B कैंसिल हो गया, implies D divides 2A. Similarly, by the same reasoning, we can say D divides 2B. तो D जो है वो 2A को भी डिवाइड कर रहा है और 2B को भी डिवाइड कर रहा है. तो D कहने का मतलब दोनों का डिवाइजर है. अगर मैं 2A और 2B का GCD ले लूँ, अगर मैं GCD कंसिडर करता हूँ 2A और 2B का, तो ये तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, और जो D है वो इन दोनों का डिवाइजर है. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ GCD, D मस्ट बी लेस देन इक्वल टू दिस. एक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ GCD पढ़ी थी, उस टाइम पे हमने पढ़ा था K कोई अगर पॉजिटिव है, दोनों से मल्टीप्लाइड है, तो K बाहर आ जाएगा. तो ये इक्वल हो गया K, मतलब यहाँ पे K है 2, तो K टाइम्स मीन्स 2 टाइम्स. ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ GCD वाले लेसन में हमने पढ़ चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं. अब GCD ऑफ A एंड B हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, देखिए ऊपर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये है 1, तो इसकी वैल्यू मैं डाल देता हूँ. तो इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 2. तो D जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, और बाय द डेफिनेशन ऑफ GCD
क्योंकि डी हमारा जीसीडी है, किसका जीसीडी है, ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी डी मस्ट बी पॉजिटिव। तो व्हाट आर द ऑप्शंस लेफ्ट आउट इज दैट डी इज इक्वल टू 1 और 2। और डी क्या है हमारा, जीसीडी ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो हमारा प्रूव हो जाता है। मैं उसको दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ जीसीडी ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी, उसकी जगह मैंने डी लिख दिया बिकॉज डी आई एम टेकिंग दैट वन। सो विद दिस आवर दिस क्वेश्चन इज आल्सो कंप्लीट। एक जरा होमवर्क कर देते हैं, इसी टाइप से ट्राई करना। ये देखिए ये ए पार्ट है, इसी का ही, इसी क्वेश्चन का ही ये बी और सी पार्ट है। ये आप खुद ट्राई कर लेना। इसके अंदर एक पार्ट में हिंट भी गिवन है, ठीक है। तो प्लीज ट्राई दिस एट योर ओन। सो विद दिस आवर यूक्लिडियन एल्गोरिथम is complete, and next time we will discuss about the prime numbers and fundamental theorem of arithmetic. Thank you very much.